Hello friends, how are you? Welcome to the Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Cattle rearing. The cattle rearing is an important economical activity in India. Milk and milk product, butter, geese, etc. is a meat, eggs, and the leathers and silk are raw material for industries. There is the most important here. Cattle rearing is important for the economic activity in India. Milk and milk product, butter, ghee, and the meats, egg, leather, and silk are raw material for industries. Animal provide a large is a proportion of energy required in a farm sector. The bulk, buffalo, horse, and ponies is a camel sector are used as tough animal. The are use of agricultural activity like a plugging of well, driving of water from well and for a carrying of load. It is to be noted here that with the rise of is a mechanized at the farming, the use of animal power from operation in one gradually decline. This is a more true of a green revolution area. There is important here the green revolution area and hair of the skin of animal are used as a raw material for a leather industry. Sheep, goat, and camel provides a wool. There are sheep, goat, and camel provide a wool, and these dungs are used to the biomass gas production and making of manure. You know that there is cow there is a use for the biomass gas production and from making of manure fertilizer. India is a leading producer of milk in the world. It is due to the initiatives attack a government thought there is Operation Flood. You know that there is Operation Flood here. Under this program, good breed of cows and buffaloes, which yard more milk. There is a more milk. There is only M here. Has been introduced. Cooperative societies in this field were encouraged. The modern dairy farm produce a milk powder, butter and cheese, and condense of milk and cream and geese along with the milk here. The largest number of livestock is found in Uttar Pradesh, is flowed by the state of Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, and this four states account for 44% of total livestock of India. The density of animal in India is the highest in the world. It is about 130 head of livestock per 100 hectare of land. The percentage of area under permanent pasture is very low in a comparison to the density of animal population. There is a cattle, buffalo, sheep, goat are important livestock in India. That is important. The next year, distribution of animal resource in India. There is a most important point. Distribution of India. There is a animal resource. Cattle rearing in India is an important economical activity. The cattle population account for the 43.5% of the total livestock in the country. The largest number of cattle in their country is found in Uttar Pradesh. Except Haryana, Punjab, and Rajasthan in other states of India, the number of cattle are greater among to livestock. The yard is a milk and from Indian cow is the lowest in the world. It is only 188 liter per animal per annum in India, while the Netherlands it is a 4,200 liter, differing by about 23 times. Buffalo account for the 80% of total livestock in India. The outer number other animals in the state of Haryana, Punjab, for the milk point of view, a buffalo are important as they account for about 53% of the total milk production in India. There is the most important distribution of animal resource in India. Sheep are found to mostly in a cold and dry region of country. They are a very few in area which are a very hot and receive heavy rain during to the monsoon. And they develop hooves
disease in the hot and mid climate. Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, and Uttar Pradesh are major states where sheep are in a large number. Among the other animals, goat, camel, horse, yaks, and meteors are important. Their goat is raised mainly for the meat and milk. In Rajasthan, goat are greater in a number than other animal. Camel are rare in West Rajasthan and the adjoining area of Gujarat. And Haryana and Punjab, camel is called there are aeroplane of desert region, are employee of the third desert of India. Horse are points are distributed all over the India, especially in Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh and Punjab. Yak are found in the mountainous area of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Sikkim, and Arunachal Pradesh. The meadows is found in the Nagaland and Arunachal Pradesh. There is a most important in this box the point the general condition of animal in India is very poor due to the lack of nutrition as afforded and the harsh hot and humidity weather condition. Also, there is a lack of artificial insemination as a center and veterinary of hospital and doctors. यदि अगला पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पशुपालन। देखिए पशुपालन कितना महत्वपूर्ण होता है और ये आप भली भांति जानते हो क्योंकि पशुओं से हमें बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हम यूज़ करते हैं। कहते हैं भारत में पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है और दूध एवं दूध उत्पाद जैसे मक्खन, घी, मांस, अंडे, चमड़ा और सिल्क उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में हमें मिलते हैं। कृषि क्षेत्र में पशुओं द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान की जाती है क्योंकि पहले के समय में आप देखते थे कृषि में जो होते थे पशुओं का इस्तेमाल किए जाते थे खेत को जुताई के लिए, हल चलाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। बैलों, भैंसों और घोड़े को जो है खट्टरों, ऊँटों का प्रयोग हल तथा विभिन्न वाहनों के खींचने आता था या सामान ढोने में किया जाता था। आज बेशक इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने ले लिया हो लेकिन इसके जो है हम इसकी उपयोगिता को भूल नहीं सकते। कहते हैं आने वाला समय में लोग इन्हीं पे दोबारा रिटर्न होंगे क्योंकि जिन संसाधनों को उन्होंने विकास किया है वो संसाधन के जो है चलाने वाला ईंधन खत्म होने के कगार पे आ चुका है। इनमें से कुछ पशुओं के खेतों की जुताई करने में प्रयोग की जाती थी, कुछ पशुओं को कुओं से पानी खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता था। कृषि कार्य एवं विभिन्न क्रियाकलापों के आज के युग में जो उधर मशीनों द्वारा संचालित तरीकों पर आश्रित होता जा रहा है, यानी इंसान जो है आज मशीनों पे जो है आश्रित हो गए हैं। परिणाम स्वरूप पशुओं द्वारा ली जाने वाले शक्ति का उपयोग घटता ही जा रहा है और देखा जाए तो ये पशु भी जो है अब कुछ भी करने लायक नहीं रह गए हैं। इन पशु को जो है आजकल देखोगे तो रोड पे ही नज़र आते हैं। कहते हैं पुराने समय में इनका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता था और कृषि में भी उपयोग किया जाता था और पहले के टाइम में कॉस्ट भी अधिक होती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ये जो होते हैं रोडों पे ही घूम रहे होते हैं और कई तरह के एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं क्योंकि इंसानों ने जो है पशु द्वारा ली जाने वाली शक्ति का उपयोग ही ख़त्म कर दिया है और मशीनों पर आश्रित हो गए हैं। लेकिन मशीन जो होते हैं आपको पता ही है कि ईंधनों पे चलते हैं और जो ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से इनको जो है पशुओं पर ही निर्भर होना पड़ेगा। तो लोग जैसे जैसे समय के साथ बदलते जा रहे हैं, कहते हैं बदलते हुए देर नहीं लगेगा जब आप पशुओं का ही उपयोग दोबारा से करने लग जाओगे। इसलिए अभी भी संभलने का टाइम है, पशुओं को जो है सही रास्ता जो है देने का समय है। लोग ऐसे जो है पशुओं को रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं इससे बहुत ही हानि होती है, जान मान की भी हानि होती है। कई बार मैंने खुद ही इस एक्सीडेंट को देखा है जहां गाड़ी चलती रहती है, पशु उसके ऊपर कूद जाते हैं। तो ये सरकार के लिए बहुत ही विडंबना भरी चीज़ है जिसको सरकार को जो इस पर तरफ ध्यान नहीं देते हैं और पशुओं को जो है संरक्षण प्रदान करना कई मायने में महत्वपूर्ण भी होता है। इस प्रकार के दृश्य उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां हरित क्रांति का पैकेज कृषि क्रियाकलापों को अपनाया गया है। पशुओं की खाल एवं चमड़े का कच्चे माल के रूप में चमड़ा उद्योग में प्रयोग होते हैं। भेड़, बकरी तथा ऊँटों के द्वारा ऊन प्रदान किया जाता है और उनके गोबर का प्रयोग जो है बायोगैस के उत्पादन में खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा पशु हमारे लिए कितना उपयोगी है और ये उपयोगी आने वाले समय में भी साबित करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत जो है विश्व के दूध उत्पादन में अग्रणीय देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जो है विश्व में अग्रणीय देश है और यह सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन फ्लड के कारण ही हुआ है। और इस गतिविधि के अंतर्गत अच्छी उन्नत नस्लें की गाय, भैंस जो कि अधिक दूध देती है उनके शामिल भी किया गया है। सहकारी समिति के
जो इस दूध व्यवसाय में जुड़ी हुई थी उन्हें प्रोत्साहित कर जो है प्रबंधित किया गया है। आधुनिक जो है दुग्धशालाएं दूध पाउडर, मक्खन, पनीर, घी इत्यादि को दूध के साथ साथ जो उत्पादित भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में पशु संसाधनों का जो है किस प्रकार वितरण है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में मवेशियों का पालन महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। मवेशियों की संख्या भारत में जो है कुल पशुधन संख्या का जो है 43.5% है, यानी 43.5% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में मवेशियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है देखी गई है। हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी मवेशियों की संख्या पशुपालन संख्या से ज़्यादा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय गायों के जो दूध की प्राप्ति की मात्रा विश्व में सबसे कम है, यानी भारतीय गायों से दूध की प्राप्ति की मात्रा विश्व में सबसे कम है, और यह करीब जो है 188 लीटर प्रति गाय प्रति वर्ष ही है। तो काफ़ी कम देखा गया है कि 188 प्रति गाय जो है प्रति वर्ष ही है, और जबकि नीदरलैंड में यह मात्रा 4200 लीटर प्रति गाय प्रति वर्ष है। तो समझ सकते हो, अगर हम नीदरलैंड से तुलना करें तो भारत का जो है बहुत ही छोटा दिखता है। कहते हैं उससे देखो 4000 इसमें अधिक है, और यहाँ 188 ही लीटर प्रति गाय प्रति वर्ष ही रखा गया है, जो भारतीय मात्रा से करीब 23% अधिक है। भैंसों की संख्या देश के सकल पशुधन का जो है 18% ही है। भैंसों की संख्या हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भैंसों का महत्व अधिक है, क्योंकि भारत के सकल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान जो है 53% है, यानी देखा जाए तो गाय का जो है बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ की गई है। देश में भेड़ें अधिकतर जो है शीत प्रधान या शुष्क प्रधान भागों में पाई जाती है। भेड़ उन क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं जहां जलवायु अति उष्ण तथा मानसूनी वर्षा बहुत होती हो। आर्द्र और उष्ण जलवायु में भेड़ों को जो है खुरों का जो है बीमारियों हो सकती है, यानी खुरों की बीमारी जो है आम देखने को मिला है, और इसका कारण जो है आर्द्र और उष्ण जलवायु के कारण जो है खुरों की बीमारी लग जाती है। देश में राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ों का पालन बड़े पैमानों पर किया जाता है। अन्य पशुओं के अंतर्गत जो है बकरी, ऊंट, घोड़े, याक एवं मिथुन महत्वपूर्ण है। बकरे का पालन उनके मांस एवं दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। राजस्थान में बकरों की संख्या अन्य पशुओं की तुलना में अधिक है। ऊंट का पालन पश्चिम राजस्थान एवं उसके संलग्न क्षेत्रों में जैसे गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में होते हैं। ऊंट के मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, जो विशेषकर भारत के थार मरुस्थल के लिए उपयुक्त होता है। घोड़े को जो है टट्टू पूरे भारत में पाए जाते हैं, और यह विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में पाले जाते हैं। याक जो होता है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मिथुन जो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है।